Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, our next lecture is about the numerical problems of chapter number 2. We have discussed the 7 numerical problems of exercise so far in our previous lecture. So today we will discuss numerical problem number 8. The numerical problem number 8 states that find the work done when the point of application of force, एक force F है, which has the value of 3I plus 2J, moves in a straight line from point P to P from point Q. There are 2 points are given whose coordinates are 2, -1 and 6, 4. एक point force F apply होती है किसी object के ऊपर, किसी एक point के ऊपर, which starts moving from point P till point Q. अब हमने ये देखना कि जब वो फोर्स P पॉइंट से Q पॉइंट तक उस चीज़ को मूव करवाती है तो उसके दौरान उसके ऊपर कितना वर्क हो रहा है. वी हैव टू कैलकुलेट दैट वर्क डन. वी नो दैट वर्क इज इक्वल्स सिंस वर्क डन इज इक्वल्स F वेक्टर डॉट D वेक्टर. Since work done is a scalar quantity, so it is a simply scalar product of force multiplied by displacement. Now we are given with the force vector, but we don't have the displacement vector. First of all, we have to calculate the displacement vector from these 2 points using P and Q, and then we will take the dot product of force with that displacement vector to calculate the work done. Here, in order to calculate the displacement vector from using the point P and Q, we will simply use the mathematical rules. We have to calculate the PQ vector, which is can be obtained by using OQ minus OP. So the coordinates of vector, point Q are 6, 4 and the coordinates of point P are 2, -1. We can raise vector sign over here because simply the points are written in the form of the ordered pair, right? Now जब यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होगा कि x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट माइनस होगा, y कंपोनेंट में से y कंपोनेंट माइनस होगा और x और y के आपस में इस तरह कोई सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होगी. सो PQ पॉइंट फाइंड करने के लिए वी विल राइट 6 -2, 4 माइनस इंटू -1. दिस विल गिव्स अस 6 -2 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस विल बिकम 5. यहाँ से अगर हम इस पी क्यू को वेक्टर की फॉर्म में लिखें, बिकॉज देखें यहाँ पे एफ डॉट डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है. सो वी वांट टू गेट दिस डिस्टेंस आर इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो डी वेक्टर इज इक्वल्स पी क्यू वेक्टर. सो दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू 4I प्लस 5J, राइट. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. वी नो दैट सिंस work done W is equals F vector dot D vector. Simply plug in the values of force, that is 3I plus 2J dot displacement vector 4I plus 5J. यहाँ पे अब डॉट प्रोडक्ट का रूल फॉलो करना है. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डॉट प्रोडक्ट, जब भी हम सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लेंगे सो आंसर विल बी 1 whenever we get the dot product of 2 different unit vectors, because the dot product will be equals to 0. Why? Because different unit vectors mean those are mutually perpendicular unit vectors. Whenever the angle between the two vectors is 90 degree, then the dot product of those two vectors will always gives us a 0 result. So यहाँ पे जब डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो सिर्फ I वाली टर्म को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, J वाली टर्म को J के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. I डॉट I की डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स की प्रोडक्ट होगी, वो हमें मैग्नीट्यूड 1 आंसर देगी, और जो कंपोनेंट्स होंगे वो बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे वो आपस में सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो यहाँ पे 3 × 4 12, I डॉट I 1 हो जाएगा, प्लस 5 × 2 10, अगेन J डॉट J गिव्स अस 1. Simply add up these 2 terms, it gives us 22 units. This is a simply answer of work done. यहाँ पे अगर हम इसको यूनिट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, and we can write it as 22 joules of work has been done in moving from point P to Q. Bismillahirrahmanirrahim. Students, our next problem is problem number 2.9, which states that show that the three vectors are given in statement. We have to prove that all of these 3 vectors are mutually perpendicular to each other. We will write simply the data
of the numerical problem and we will name the vectors as a, b and c. Here a vector is equals I plus j plus k. Vector b is 2i minus 3j plus k and vector c is 4i plus j minus 5k. Now its solution. We have to prove that all of these three vectors are mutually perpendicular to each other. So keep in mind, whenever we have to prove that any two vectors mutually perpendicular to each other, we simply have to take the dot product of those two vectors, right? जब भी हमने ये प्रूफ करना हो कि कोई से दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि उन दोनों के एक डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. डॉट प्रोडक्ट का आंसर अगर जीरो के इक्वल आ जाए, we will write that those two vectors are mutually perpendicular to each other. Why? Because whenever two vectors are mutually perpendicular to each other, then the angle between them will be equals to 90 degree. In case of dot product, we will use the trigonometric function of cos theta, which gives us a zero value at an angle of 90 degree. It means cos of 90 degree is equals to 0. Similarly, जब हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो के इक्वल आएगा, तो इट मीन्स कि उन दोनों वेक्टर्स का आपस में जो रिजल्ट होगा वो आपस में जो एंगल होगा उन दोनों का वो 90 डिग्री होगा. यहाँ पे हम दो वेक्टर्स a और b की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. We will write as a vector dot b vector is equals I plus j plus k dot 2i minus 3j प्लस के. यहाँ पे अगेन डॉट प्रोडक्ट के लिए हम वही रूल फॉलो करेंगे कि आई वाली टर्म कोफिशिएंट आई के साथ, जे वाला कोफिशिएंट जे के साथ और के का कोफिशिएंट के के साथ प्रोडक्ट लेगा. एंड डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है दैट विल बी इक्वल्स टू 0. यहाँ पे 1 आई का यूनिट वेक्टर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 2 आ रहा है, 2 1s are 2, सिंपली आई डॉट आई गिव्स अस अ 1. नाउ the coefficient of the j unit vector is 1 and here it is minus 3, so it will gives us a minus 3 into 1 gives us minus 3. Similarly, the coefficient of k is 1, the coefficient of k is 1, so it gives us 1 into 1 gives us a 1. On adding and subtraction, addition and subtraction, 2 plus 1 it gives us 3 minus 3 and hence it gives us answer 0. It means the dot product of, since a dot b is equals to 0, it means the vector a is perpendicular to the vector b. On the same grounds, you have to calculate a vector dot c vector and b vector dot c vector. You have to calculate these two results and have to prove both of these equals to 0. Then you will write that the vector a and c are mutually perpendicular to each other, and similarly the vector b and c are mutually perpendicular over here. Students, our next numerical problem is numerical problem number 10, in which it states that the two vectors a and b are given. He asks to calculate the projection of vector a on vector b. कहता है कि दो वेक्टर हमें गिवन है, इन दोनों वेक्टर्स को आप चेक करें और चेक करके ए वेक्टर की प्रोजेक्शन कैलकुलेट करें ऑन द वेक्टर बी. ए वेक्टर की बी के ऊपर जो प्रोजेक्शन कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, उसको मैं एक डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ. सपोज करें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वन इज ए एंड अदर इज द वेक्टर बी. अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि जब आप हम इस ए वेक्टर का परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऑन द वेक्टर बी, इस बी वेक्टर के ऊपर हमने ए का प्रोजेक्शन ड्रा कर दिया. ठीक है, प्रोजेक्शन ड्रा करने के बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी, जिसको हम ए एक्स कंपोनेंट कहते हैं, यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट हमारे पास वाई कंपोनेंट हो जाएगा. अब हमने ए वेक्टर का वो कंपोनेंट कैलकुलेट करना है विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. जब भी कहा जाए ना कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. अगर कहा जाए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट द एक्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. राइट, यहाँ पे उसने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कहा है, तो इट मीन्स कि हमने इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है. एक्स कंपोनेंट अगर देखा जाए ए वेक्टर का, तो उसको हम ए cos थीटा की शेप में लिखते हैं.
इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, कहाँ से निकालेंगे? फॉर दैट रीज़न वी विल यूज़ the formula for the dot product in which it states a vector dot b vector is equals a b cos of theta. Here a and b are simply numbers. अगर हम इनको a b के बजाय मैं इनको लिख दूँ b a, then there is nothing changes in this relation. Now I have to calculate a vector dot b vector divide equals, I have to calculate a cos theta. Here this term b is extra which comes on other sides and it will be written in division. अब यहाँ पे देखें एक a डॉट b हमने डॉट प्रोडक्ट निकालनी है a और b की, और दूसरा हमने b का मैग्नीट्यूड निकालना है. The magnitude of b when divided with the dot product of the vectors a and b, it gives us the projection of a on vector b. अब हम यहाँ पे पहले डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं. सो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स, a और b के दोनों की वैल्यूज लगा देते हैं. i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 4k, 3i minus 4k. Now simply dot product follows the straightforward multiplication of I unit vector into I, j into j and coefficient of k into k. Similarly यहाँ पे I का coefficient 1 है, यहाँ पे 3 1s are 3 प्लस यहाँ पे j का coefficient 0 है. So minus 2 into 0 answer 0 प्लस माइनस 4 3s are 12, k dot k equals 1. सो यहाँ से हमारे पास a डॉट b का जो आंसर आ जाएगा डेट कम्स आउट टू बी -9. राइट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज, इसमें हमने हमारे पास 3i माइनस 4k 3 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 4 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, इट गिव्स अस 9 प्लस 16 square root and it gives us square root 25. Thus the magnitude of vector b comes out to be simply 5. Now we have to plug the values in equation number 1. So this will gives us, from this equation a cos theta will be equals to a dot b is equals minus a cos theta is equals, a dot b की जगह आ जाएगा -9 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से 5. दस -9 डिवाइडेड बाई 5 इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a in the direction of vector b. Students, our next numerical problem is numerical problem number 11, in which it states that the three vectors a, b and c. The vector a is in 4 units in the direction of north, vector b is 3 units in direction of west, and vector c is lies in 8 units of in east. Then it states that calculate the values of a cross b, a cross c and b cross c. यहाँ पे a क्रॉस b, a क्रॉस c और b क्रॉस c निकालने से पहले एक छोटा सा हम ओवरव्यू करते हैं अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले हमें पता था कि जब दो वेक्टर्स के हम प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट के तौर पे हमें एक तीसरा वेक्टर ही मिलता है. वी नो दैट एनी वेक्टर कंस्टिट्यूट अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन. यहाँ पे जब हम a क्रॉस b या a क्रॉस c या b क्रॉस c वटएवर, जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 4, 3 या 8, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिंपल एक मैग्नीट्यूड मिल जाएगा जो हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता देता है. बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालने का रूल क्या होता है कि लेट्स सपोज वी हैव अ वेक्टर a इन दिस डायरेक्शन and we have a vector b in this direction. We are going to take the cross product of these two vectors, that is a cross b. It may be any unit vector, it may be any vector. अब यहाँ भी जो n यूनिट वेक्टर आ रहा है, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन हमें निकालनी होती है. वो डायरेक्शन किधर आएगी? कीप इन माइंड कि जब भी हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन विच इज कंटेनिंग दोज टू वेक्टर्स. वो दोनों वेक्टर जिनके क्रॉस प्रोडक्ट ली जा रही है वो जिस प्लेन के अंदर लाई करते हैं हमेशा
प्रोडक्ट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो उस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों एक बोर्ड की प्लेन, वाइट बोर्ड की प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ से ए और बी की डायरेक्शन निकालनी है ए क्रॉस बी की, तो उसके लिए एक सिंपली रूल है जिसको हम राइट हैंड रूल का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट राइट हैंड रूल, यू हैव टू प्लेस योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। आपने फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड प्लेस करना है। यू हैव टू कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में आपने फिंगर्स कर्ल करनी है। देन दिस इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर। जो इरेक्टेड थंब होगा आपका स्ट्रेट अंगूठा होगा, अंगूठे की डायरेक्शन वो आपको इन दोनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट के बारे में बता रही होगी कि जो प्रोडक्ट वेक्टर हमें मिलेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी और किस तरफ होगी और कैसी होगी। यहाँ पे अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट हम हमें आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है। इट मीन्स कि ए और बी के प्रोडक्ट के बाद जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन हमारी आउटवर्ड होगी, आउट ऑफ द दिस प्लेन ऑफ दिस वाइट बोर्ड। सिमिलरली जब हम ए क्रॉस बी या बी क्रॉस सी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसी राइट हैंड रूल को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व द फर्स्ट पार्ट दैट इज ए क्रॉस बी। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स, यहाँ से अगर देखा जाए हमारे पास ए वेक्टर आ रहा है 4 यूनिट्स नॉर्थ क्रॉस B vector lies in 3 units west. This is in 3 units west. Now the numerical value will simply 4 3s are 12. We have to check the value, the direction of product vector. For that reason, we will put the right hand in the direction of vector A. Vector A lies in this direction. So we have to curl the fingers towards the second vector. A से B की तरफ fingers curl करेंगे. Erected thumb is in outward direction. जब इरेक्टेड थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो प्रोडक्ट वेक्टर आएगा वो प्रोडक्ट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी डैट विल सिंपली वर्टिकली अपवर्ड। 12 यूनिट्स वर्टिकली अप। ये यहाँ पे जो कि हमने इस वाइट बोर्ड के ऊपर डायरेक्शन ड्रा की, अगर इसी डायरेक्शन को हम लोग अर्थ के ऊपर प्लॉट करें देन राइट हैंड विल बी इन दिस डायरेक्शन, the curling fingers will be in this direction and the erected thumb will be in upward direction. That is why we write the direction in vertically upward side, right? Similarly, the direction for the A cross C can also be calculated by using the same steps. Simply आपने A और C के numerical values को multiply करना, 8 4s are 32 और फिर आपने उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रखना है, द डायरेक्शन ऑफ ए कर्ल करेंगे सेकंड की तरफ, इरेक्टेड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर। नाउ we will move to the third part that is B cross C. Keep in mind कि जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला आता है that is A vector cross B vector is equals AB sin थीटा into n hat। यहाँ पे sin थीटा की टर्म आ रही है। अब देखिए हमारे पास है B cross C, B is in west direction, C is in east direction। So हमें पता है कि जब भी sin थीटा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है इन एक्स वाई प्लेन उस वक्त साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। कैसे? साइन 0 डिग्री पे 0 होता है। अगर हम मूव करके नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चले जाएं तो 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री के ऊपर अगेन साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। फिर आप मूव करके एक्स एक्सिस पे आए तो नेक्स्ट वैल्यू 360 पे फिर साइन की वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स कि द पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाई। ठीक है, जब भी हम उसके अंदर 180 शिफ्ट करते जाएंगे हमें सेम वैल्यू रिपीट होकर मिलती जाएगी। यहाँ पे बी और सी जो है वो दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। बी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सी इज इन डाउनवर्ड। जिस तरह कहते हैं कि बी सी जो है वो ईस्ट में है और बी जो है वेस्ट में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उस वक्त उन दोनों के दरमियान जो एंगल आएगा दैट एंगल विल बी इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स 8 3s are 24 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे हम चले एंगल की फॉर्म में लिख लेते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री सिंस इनटू एन हैट। साइन 180 0 होता है, सो इसकी प्रोडक्ट का जो आंसर होगा हमारे पास दैट विल सिंपली कम्स आउट टू बी 0।